Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium, uh, chapter number supplementary unit or chapter number 5, The Happy Prince, in which up to now we have seen that there was a little swallow who want to fly to Egypt, but he decided late to join the rest of the swallow members. So after almost weeks of pass, he decided to go. Throughout the day he was flying and he was very tired. He was passing through one beautiful city where the statue of Happy Prince was there. That swallow decided to take a rest for the night over there. And certainly when he started resting in between the legs of the Happy Prince, he felt certain the drops of water. First, the swallow thought that it might be rain. Swallow also thought that if the statue cannot stop the rainwater, I should move towards a chimney where I can be safe. But as soon as that swallow moves his head upward side, he saw that stars were there, sky were clean, there were no clouds, but certainly that swallow got an eye at the Happy Prince's eyes, from where the tears were rolling down from his golden cheeks. This is how the story moves on. In between that, the Happy Prince told the reason that why the prince was crying, that the prince saw one of the street, there was a boy laying down with the fever, but her mother couldn't help her. So he was crying. Happy Prince requested the swallow to get out one of the ruby from the sword, hill sword. और वहां से हमें आगे देखना है. I am waited for Egypt, said the swallow. swallow ने कहा कि मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे दोस्त वहां पे मेरी राह देख रहे होंगे. My friends are flying up and down the Nile. नाइल नदी उन्होंने शायद क्रॉस कर ली होगी. And talking to the large lotus flower. और वहां पे शायद बड़े से कमल के फूलों से भी वो आगे निकल गए होंगे. Soon they will go to sleep. और वो आराम करने के लिए चले जाएंगे. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. प्रिंस ने उस चिड़िया को कहा कि आज की रात तुम मेरे दोस्त बनकर, मेरे संदेशावाहक बनकर आप मेरे साथ रहो. The boy is so thirsty. वो लड़का बहुत प्यासा है. And the mother so sad. और माता नाखुश है. प्रिंस ने ये चीज स्वैलो को कही. I don't think I like boys, answered the swallow. स्वैलो ने कहा कि मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है. I want to go to Egypt. That's only. I want to go to Egypt. मुझे इजिप्ट ही जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो नाखुश होने लगा, तो स्पैरो को भी लगा यार चलो ठीक है, देख लेते क्या होता है. It is a very cold here, he said. स्पैरो ने कहा यहाँ पे बहुत ठंड है. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अंततः उस चिड़िया ने प्रिंस के प्रस्ताव को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं आज की रात यहाँ पे आपके लिए, आपके संदेशावाहक बनकर मैं यहाँ पे रहूंगी. थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने उसका आभार व्यक्त किया. ठीक है भाई चलो. द स्वैलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड. उस स्पैरो ने, उस स्वैलो ने, उस चिड़िया ने
प्रिंस की जो तलवार थी उसमें से एक रूबी को निकाला एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। उस शहर की बड़े बड़े मकानों के छतों के ऊपर से उड़ता उड़ता वो चिड़िया अपनी चांच में वो रूबी लेके, अपनी चोंच में वो रूबी लेके आगे बढ़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वहां पे कैथेड्रल टावर था, वहां से वो पसार होता है। वेयर द व्हाइट मार्बल्स एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, वहां पे सफेद कलर के मार्बल्स से एक अच्छा सा स्कल्पचर जैसा, मतलब कुछ बनाया हुआ था पत्थर में से। He passed by the palace and heard the sound of the dancing. उसने एक पैलेस से पसार हुआ जहां पे उसने किसी संगीत की, डांस मतलब नाचने की या नृत्य करने की आवाज सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ वहां पे बालकनी में आई, वो भी देखा। I hope my dress will be ready in time for the state ball. स्टेट बॉल का जो प्रसंग आएगा उसके लिए मेरा ड्रेस तैयार हो जाएगा। She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए फ्लावर्स तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए, लेकिन उसको जो पसार करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो शायद बहुत लेजी मतलब आलसी लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे मेरे प्रसंग के लिए उस औरत ने बोला कि मेरा ये ड्रेस जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये किसको बोल रहा है? ये जो ड्रेस वाली चीज है वो उसी लड़की की मदर को बोली जा रही है कि उसको तैयार हो जाना चाहिए, राइट। और वो जो लड़का है उसकी मदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है, तो बाहर से किसी ने उसको दिया काम, एक औरत, और वो औरत उस मदर को बोल रही है। He passed over the river, स्पैरो एक रिवर होती है वहां से पसार होता है, and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. एक शिप होता है रिवर के अंदर जिसका मास्ट का मतलब एक बड़ा सा थंब, राइट। शिप के बीच में जो इसको बैलेंस करता है उस पे वो सारे के सारे रस्सियों से उसको बांध के बैलेंस करने की कोशिश करता है ताकि तूफानों में उसको बचाया जा सके। जो मेन सेंटर पोल ऑफ द शिप होता है उसको मस्ट बोलते हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, आखिर में वो चिड़िया उस पुअर वुमन के पास पहुंची। द बॉय वाज टॉस्टिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, वो बहुत तेज बुखार से लड़का अपने बेड के अंदर उछल रहा था। एंड द मदर हैड फैलन अस्लीप, और माता काम करते करते सो गई थी। शी वाज सो टायर्ड, वो इतनी थकी थी। इन अ होप, एक आशा के साथ, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, जहां पे वुमन का हाथ यूं रखा हुआ था इस टेबल पे जहां पे वो अपना सिर काम करते करते सो गई, वहां पे उस चिड़िया ने एक रूबी को रख दिया। Then he flew gently round the bed, वो धीरे से जहां पे वो बच्चा सो रहा था और फीवर से टॉसअप हो रहा था, उछल रहा था, उस जगह का चक्कर लगाती है चिड़िया। फैनिंग द बॉय फोरहेड, फैनिंग मतलब उसकी पंखों से थोड़ी सी हवा उसको डाल रही थी माथे पे। विथ हिज विंग्स, अपनी पंखों से। हाउ कुल आई फील, सेड द बॉय, बॉय ने कहा कितना ठंडा मुझे लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे और अच्छा लगेगा। And he sank into the delicious slumber, और धीरे धीरे वो बच्चा आराम की यानी चैन की नींद सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince, फिर से वो जो चिड़िया थी वो हैप्पी प्रिंस के पास पहुंची। And told him, और उसको बोली what he had done, उसने ऐसा क्या किया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. चिड़िया को जैसे ही प्रिंस ने बोला कि तूने वहां पे क्या किया, चिड़िया ने कहा कि वैसे तो ठंडी है लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पे बहुत अच्छी चीज मैंने की, बच्चे की मदद की, उसको थोड़ा सा अपनी विंग से ठंडी हवा का झोंका दिया, और ऊपर से वो औरत के हाथ में मैंने जो रूबीज आपने
मुझे दिया था, वो रूबीज मैंने उसको दे दिया। That is because you have done a good action, said the prince. प्रिंस ने कहा कि आपको इतनी ठंडी में भी वार्म इसलिए लग रहा है, अच्छा गर्म इसलिए महसूस हो रहा है कि आपने एक अच्छा काम किया है। गुड एक्शन, यू हैव डन अ गुड डीड, अच्छा कर्म किया है, और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक, अब उस चिड़िया को सोचने लगी उस चिड़िया। एंड देन फेल asleep, और धीरे धीरे नींद में आ रही थी। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम अ स्लीपी, वो हम जब भी वो सोचती तभी वो स्लीपी फील करती, मतलब उसको नींद आने लगती। सोचने का काम जैसे ही होता उसको नींद आने लगती। When a day broke, जब फिर से नया दिन हुआ, he flew down the river and had a bath, वो नदी की ओर गई और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. Swallow ने कहा कि आज की रात मैं इजिप्ट जाऊंगी। And he was in a high spirit at the prospect मतलब आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, वैसा देखकर उसकी स्पिरिट मतलब उसकी जो आत्मा है बहुत खुश हो चुकी है। He visited all the monuments and sat a long day on the top of the church steeple, जो चर्च के ऊपर जो क्रॉस लगा होता है उस क्रॉस पे उस चिड़िया ने पूरा दिन बिताया। वहां पे मॉन्यूमेंट्स जो देखने लायक जगह थी उन सभी जगह पे उस चिड़िया ने उसकी विजिट की, मुलाकात ली। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जैसे ही रात हुई वो चिड़िया हैप्पी प्रिंस के पास गई। Have you any commissions for Egypt? क्या आपको इजिप्ट में कुछ संदेशा वगैरह भेजना है, क्या कुछ देना वगैरह है? चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस से कहा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं यहाँ से इजिप्ट की ओर निकल रही हूँ, अगर कोई काम हो इजिप्ट का तो आप मुझे बता दो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरे दोस्त लोग मेरी राह देख रहे हैं। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि आप क्या वन मोर नाइट, आप यहाँ पे मेरे साथ रह सकते हो। ओनली वन प्रपोजल पुट बाय द प्रिंस इन फ्रंट ऑफ स्वेलो, उस चिड़िया के सामने एक ही दूसरी प्रपोजल रखी गई प्रिंस के जरिए कि भाई क्या आप एक और रात मेरे साथ बिताओगे, यहाँ पे रहोगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा, अरे ओ चिड़िया चिड़िया सुनो मेरी बात। Far away across the city I can see a young man in a garret. मैं दुख में एक आदमी को देख रहा हूँ। He is leaning over the desk covered with the papers. पेपर्स से कवर किए गए एक डेस्क पे वो लीन कर रहा है, मतलब झुका हुआ है। And in the glass by his side there is a bunch of withered violets, और उसके बाजू में बहुत सारे bunch of violets बिखरे पड़े हैं। His hair is brown and crisp, उसके जो बाल है वो ब्राउन कलर के हैं और बिखरे बिखरे से और जिसको बोलते हैं ना खुरदुरे से हो चुके हैं। And his lips are red as a pomegranate, और उसके होठ जैसे अनार के दाने हो इस तरह से रेड हो चुके हैं। एंड ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसको बहुत बड़ी और स्वप्नशाली आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो थिएटर का एक नाटक जो बना रहा है, डायरेक्टर ने उसको जो बनाने के लिए दिया था वो उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, वहां पे बहुत ठंड है, वो आगे लिख नहीं सकता। देयर इज नो फायर इन द गैरेट, उस गैरेट में किसी भी तरह की आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख से उसको फेंट मतलब मूर्छित हो गया है। I will wait with you one night longer, said the swallow. Swallow ने कहा कि मैं आज की एक और रात आपसे आपके साथ यहाँ पे बिताऊंगी। Who really had a good heart, जिस प्रिंस का हृदय इतना अच्छा है उसके साथ मैं एक और रात यहाँ पे रहूंगी, उसकी मदद करूंगी। ऐसा स्वेलो ने उस प्रिंस को
बोला। He asked if he should take another ruby to the young playwright. ये एक नाटक लिखने वाले को, ये जो कि युवा है, अभी उसकी बहुत सारी जिंदगी बाकी है, अगर ये भूख से और ठंड से ऐसे ही मर जाएगा तो उसके वर्क आधे अधूरे रह जाएंगे। और प्रिंस नहीं चाहता था कि इसके ऐसे वर्क्स आधे अधूरे रह जाए। तो उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया कि भाई देख, तू मेरा एक और रूबी निकाल ले, तू मेरा एक और रूबी निकाल ले, राइट, और तू इस चिड़िया को देके, सॉरी, उस यंग प्ले राइटर को देके आ। Alas, I have no ruby now, said the prince. प्रिंस ने कहा कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं बचा है। My eyes are all that I have left. अब मेरे पास मेरी आंखें ही बची है, इसके अलावा मेरे पास और कोई डायमंड नहीं है। They are made of red sapphire. ये इस तरह के हीरे से बना है जो पहले किसी ने शायद न देखा होगा, राइट। तो ये सफायर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंस ने उस चिड़िया को बोला, which were brought out of India 1000 years ago. इस सफायर को भारत से लाया गया था बहुत हजारों साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उस चिड़िया ने, सॉरी, उस प्रिंस ने चिड़िया को बोला कि मेरी इन दोनों आंखों में जो सफायर है उसमें से एक को आप निकाल लो और आप उस प्ले राइट के पास लेके जाओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood. वो ज्वेलर यानी सुनार को बेचेगा और उससे पैसे जो आएंगे उससे वो आग जलाने वाली लकड़ी, मतलब लकड़ी आग के लिए वो लाएगा। एंड फिनिश इस प्ले, वो अपना नाटक यानी जो भी प्ले वो लिख रहा है वो कंप्लीट करेगा। स्वेलो ने कहा, डियर प्रिंस, अरे ओ प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगन टू वीप। चिड़िया बोली कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी आंख कैसे निकाल सकती हूँ, और वो रोना शुरू कर देती है। तो प्रिंस ने कहा, स्वेलो स्वेलो, लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, मैंने तुम्हें जैसे आदेश दिया वैसा ही करो, डोंट वरी अबाउट इट। सो द स्वेलो प्लक आउट, स्वेलो ने एक रूबी को निकाला, सॉरी एक सफायर को निकाला, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेज, जहां पे वो बंदा प्ले राइट कर रहा था वहां पे जाती है। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसानी से वो अंदर चली गई। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, वो छोटी सी कुटिया के अंदर बड़ा सा होल था, उसमें से वो कुटिया के अंदर चली गई। गैरेट मतलब एक छोटा सा टूटा फूटा सा झोपड़ा जिसको आप बोल सकते हो। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आ गई। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को इस तरह से, हेड को इस तरह से रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, उसने चिड़िया का अंदर आने का जो फ्लटरिंग वॉइस था, पंखों का फैलने का आवाज थी, उसने सुन नहीं पाया, राइट। एंड व्हेन ही लुक अप he found the beautiful sapphire laying on the withered violets, जहां पे वो लिख रहा था इंक से, राइट, उस वायोलेट पे जो, जहां पे इंक जिसको आप बोलते हैं ना पंख से लिखना प्ले, तो वहां पे एक सफायर था। जब उसने देखा तब किसने, प्ले राइटर ने, राइट। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड, उसने कहा कि मैं अब एप्रिशिएट हूंगा। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, उसने कहा कि मैंने जो प्ले लिखा है उसका जो कोई महान चाहक होगा उसने मुझे ये सफायर दिया है। सॉरी, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले खत्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश हो चुका है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन, दूसरे दिन वो चिड़िया वहां पे हार्बर की ओर उड़ के गई। He sat on the mast of the large vessel, large vessel, बड़ी सी जो मटके जैसा वेसल जो होता है उस पे वो बैठी। And what the sailor working, sailor जिस तरह से काम कर रहा है वहां पे वो देखती रही। I am going to Egypt, cried the swallow, swallow ने कहा कि अब मैं इजिप्ट की ओर जा रही हूँ। But nobody minded, किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है। And when the moon rose, he flew back to the happy prince, जब फिर से रात हुई तब वो चिड़िया फिर से प्रिंस के पास आई
और कहा, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। ही क्राइड, उसने प्रिंस को कहा कि अब मैं तुम्हें गुड बाय यानी आखिरी नमन करने आई हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, अरे वो छोटी सी चिड़िया सुनो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट लॉन्गर, क्या आप एक और रात मेरे साथ नहीं बिताना चाहोगी? इट इज विंटर, अभी तो ये ठंड की मौसम है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा ये ठंड की मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ पे बर्फ भी आने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, ग्रीन पाम ट्रीज वहां पे अच्छे अच्छे वहां पे वार्म नेचर होगा, ग्रीन प्लाम ट्रीज होंगे, मतलब ओवरऑल खुशनुमा वातावरण स्पैरो के लिए वहां पे होता है, स्वेलोस के लिए होता है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वो बहुत लेजीली मड में, उस टाइम पे वहां तो गर्मियां चल रही होगी तो पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, और वहां पे मड सिर्फ गीली मिट्टी रहेगी, तो क्रोकोडाइल वहां पे पड़े रहेंगे, वो हमें कुछ हार्म नहीं कर सकते। इन द स्क्वायर बिलो, रास्ता हो रहा है। There stands a little match girl, वहां पे देखो एक मैच गर्ल खड़ी है। She has let her matches fall in the gutter, उसकी सारी की सारी तिलियां जो है वो गटर के अंदर गिर गई है। And they are all spoiled, वो सारी की सारी खराब हो चुकी है। Her father will beat her if she does not bring home some money, उसके पिताजी उसको मारेंगे अगर वो इस मैच बॉक्स के बदले में अगर पैसे कुछ घर पे नहीं ले गई। एंड शी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका खुला शीर है, उसके पांव में जूते नहीं है, ठीक से कपड़े उसको पास पहनने के लिए नहीं है। अगर ये लड़की कुछ अगर घर पे नहीं ले गई तो उसके पिताजी उसको बहुत मारेंगे, डांटेंगे। प्लग आउट माय अनदर आई, अब मेरी आंख में से दूसरा सफाया निकालो, एंड गिव इट टू हर, और उसको जाके दे के आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसको नहीं मारेंगे। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।